یہ پوسٹر विवादित ہے, یہ پوسٹر متنازع ہے, قانون کے مطابق نہیں ہے. اس پوسٹر کی وجہ سے تمہارا چالان کاٹا جائے گا. اور پھر پولیس نے چالان بھی کاٹ دیا. یہ پوسٹر کیا تھا؟ آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میری بائک پہ لکھا ہوا ہے آئی لو محمد, ٹھیک ہے, اور یہ ان صاحب نے میرا چالان کاٹا ہے آئی لو محمد کے اوپر. دیکھ لو, یہ بول رہے ہیں یہ وواد ہے, یہ آپتی جنک شبد بتا رہے ہیں آئی لو محمد کو. ہاں, یہ بول رہے ہیں کہیں دکھا لے, کسی کو دکھا لے, ٹھیک ہے, اور نہ ہی اس چیز کا بیس بتا رہے کہ کس بیس پہ چالان کاٹ رہے ہیں, ٹھیک ہے. آئی لو محمد کو یہ آپتی جنک بول رہے ہیں. اتر پردیش کے باغپت سے خبر آئی جہاں ایک نوجوان اپنی بائک سے جا رہا تھا. بائک کے سامنے اس نے ایک اسٹیکر لگا رکھا تھا جس پر لکھا تھا آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم. باغپت کی ٹریفک پولیس نے اس نوجوان کو روکا اور کہا تم نے اپنی بائک پر آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پوسٹر لگا رکھا ہے, یہ ووادت اسٹیکر ہے, یہ قانون کے خلاف ہے, تمہارا چالان کاٹا جائے گا. اور پھر پولیس نے چالان بھی کاٹ دیا. پولیس کا کہنا ہے یہ چالان قانون کے مطابق کیا گیا ہے. اس طرح کی خبر کوئی پہلی مرتبہ سامنے نہیں آئی ہے. 2 دن پہلے بھی خبر سامنے آئی تھی اتر پردیش کے میرٹھ میں, جہاں مسلمانوں نے اپنے گھروں پر آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پوسٹر لگا رکھا تھا. پولیس وہاں پہنچتی ہے اور ان تمام پوسٹروں کو ہٹایا جاتا ہے. آج یہ خبر آئی ہے یوپی کے موانا سے, جہاں مسلمانوں نے اپنے گھروں میں آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پوسٹر لگایا تو پولیس پہنچتی ہے, پوسٹر کو ہٹایا جاتا ہے, اور جن لوگوں نے اس طرح کا پوسٹر لگایا تھا انہیں ڈیٹین بھی کر لیا گیا ہے. اور یہ وہ باتیں ہیں, یہ وہ خبریں ہیں جو اب تک میڈیا میں آ چکی ہے, جہاں کے لوگوں نے سامنے آ کر کے بتایا یا خود پولیس نے دعویٰ کیا کہ ہم نے یہ کامیابی حاصل کی ہے اور یوگی کی آدیش کے مطابق ہم ہر گھر جا کر جائزہ لے رہے ہیں, ہر ایک کے دروازے کو دیکھ رہے ہیں کہ کس نے کس طرح کا پوسٹر لگایا ہے. اور کہیں پر بھی اگر آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پوسٹر ہمیں ملتا ہے ہم اسے فوراً ہٹاتے ہیں, اس کو خبروں میں جگہ دیتے ہیں, آج تک کو دوسرے میڈیا والے کو بلاتے ہیں کہ ہماری تعریف کرو تاکہ ہمیں یوگی آدتیہ ناتھ کی طرف سے شاباشی ملے, ہمارا پروموشن مل جائے. ذرا ان لوگوں کا اندازہ لگائیے جن کی خبریں نہیں آ پاتی ہے یا جو لوگ بات چیت کے ذریعے ہی مسئلے کو حل کر لے رہے ہیں, میڈیا کو وہاں تک پہنچنے نہیں دے رہے ہیں. اس ویڈیو میں یہ خبر آپ کو بتانا مقصد نہیں ہے, نہ اس کا تذکرہ کرنا ہے. روزانہ اس طرح کی خبریں سامنے آ رہی ہے اور ملت ٹائمز پر بھی آپ کو لگاتار اپڈیٹ دی جاتی ہے, خواہ پوسٹر کی شکل میں ہو, بریکنگ نیوز کی شکل میں ہو, شارٹ ویڈیو کی شکل میں ہو, یا ملت ٹائمز کی ویب سائٹ پر بھی آپ کو اپڈیٹ دی جاتی ہے. جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, جو اہم بات وہ یہ کہ یوپی پولیس باغپت میں کہہ رہی ہے آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پوسٹر ووادت ہے, یہ غیر قانونی ہے, اللیگل ہے, اور اس کو لگانے کی وجہ سے چالان کاٹا جائے گا. یہ پورا معاملہ شروع ہوا تھا کانپور سے جب پہلی مرتبہ خبر سامنے آتی ہے کہ وہاں کی پولیس نے 24 مسلم نوجوانوں کے خلاف مقدمہ درج کیا ہے, اور مقدمہ درج کرنے کی وجہ یہ ہے کہ 12 ربیع الاول کے جلوس کے موقع پر 5 سپٹمبر کو ان لوگوں نے ایک جگہ پوسٹر لگایا تھا, بینر لگایا تھا, اور وہاں پر لکھا ہوا تھا آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جب یہ خبر سامنے آئی تو بیرسٹر اسد الدین اویسی نے سب سے پہلے ٹویٹر پر لکھا اور کہا اگر آئی لو محمد کا پوسٹر لگانا جرم ہے تو میں بار بار یہ جرم کروں گا, بار بار پوسٹر لگاؤں گا. اس پوسٹر کو لگانے کے لیے جو سزا دی جائے ہر سزا منظور ہے. اس کے بعد پرشاسن پر دباؤ پڑتا ہے. دیش کے کئی علاقوں میں بھی احتجاج ہوا, پروٹیسٹ ہوا, مختلف لوگوں نے سوشل میڈیا پر آ کر لکھنا شروع کیا, بولنا شروع کیا, اور سب نے کہا میں بولوں گا آئی لو محمد, جو سزا دینا ہے دو, جو کارروائی کرنی ہے کرو. اس جملہ کو بولنے اور لکھنے سے پیچھے ہٹنے والے مسلمان نہیں ہیں. اس کے بعد کانپور پولیس کا بیان سامنے آتا ہے اور کانپور پولیس کہتی ہے کہ وہاں پر آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پوسٹر لگانے کی وجہ سے کارروائی نہیں ہوئی ہے, نہ پرشاسن کو اس کی وجہ سے کوئی دقت ہے, بلکہ وہاں پر پہلے سے کسی دھرم کا پوسٹر لگا ہوا تھا اور اس پوسٹر کو مسلمانوں نے ہٹا دیا تھا, اپنا پوسٹر لگایا تھا. اس کے بعد بجرنگ دل کے لوگوں میں اور مسلمانوں میں جھڑپ شروع ہو گئی, ہاتھا پائی ہوئی, لڑائی ہوئی. پولیس نے دونوں کو سمجھا بجھا کر معاملے کو ختم کر دیا تھا, صلح سمجھوتا کرا دیا تھا. ایک ہفتے کے بعد پولیس نے FIR درج کی تھی تو پولیس نے وضاحت دی اور کہا کہ آئی لو محمد سے انہیں کوئی دقت نہیں ہے, اس طرح کے پوسٹر پر انہیں کوئی اعتراض نہیں ہے, بلکہ اعتراض اس بات پر ہے کہ ان لوگوں نے دوسرے کا پوسٹر ہٹا کر اپنا پوسٹر لگایا تھا. لیکن اب بات یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ باغپت پولیس کہہ رہی ہے آئی لو محمد کا پوسٹر ہی ووادت ہے. یہ بول رہے ہیں یہ وواد ہے, یہ آپتی جنک شبد بتا رہے ہیں آئی لو محمد کو. ہاں, یہ بول رہے ہیں کہیں دکھا لے, کسی کو دکھا لے, ٹھیک ہے, اور نہ ہی اس چیز کا بیس بتا رہے کہ کس بیس پہ چالان کاٹ رہے ہیں.
ठीक है। आई लव मोहम्मद को ये आपत्तिजनक बोल रहे हैं। और अगर आई लव मोहम्मद के पोस्टर को विवादित बताया जाता है तो क्या आपका दिल नहीं दुख रहा है, आप परेशान नहीं हो रहे हैं? और ये मौका है मुस्लिम लीडरों के मुत्तहिद होने का, यूनाइट होने का और एक मैसेज देने का कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से, उनसे मोहब्बत के इजहार से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने ज़रूर ट्वीट कर दिया, लगातार बयान दिया, और उनके बयान के बाद देश भर में एक माहौल बना विरोध का, एहतजाज का। सोशल मीडिया के जितने इन्फ्लुएंसर है उन लोगों ने तो वीडियो बना बनाकर और लोगों को वरगलाना भी शुरू कर दिया। उसी का नतीजा यह हुआ कि बरेली में मौलाना तौक़ीर रज़ा खान को गिरफ्तार भी कर लिया गया और पुलिस की तरफ से अब कहा जा रहा है एक दंगा कराने की, फसाद कराने की कोशिश थी। 50 से ज़्यादा मुस्लिम नौजवानों को वहाँ गिरफ्तार भी कर लिया गया। दसियों लोगों के घरों को बुलडोज किया जा रहा है और योगी आदित्यनाथ की भाषा है कि मौलाना समझता था कि वो दंगा कराएगा, किसी और की सरकार है, ऐसी सज़ा दी जाएगी, उसकी 7 पीढ़ियाँ याद रखेगी। और उसके बाद लगातार आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पोस्टर लगाने की वजह से, इस तरह का बैनर लगाने की वजह से लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर अगर कोई आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पोस्टर शेयर कर रहा है उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है, उसके खिलाफ भी एक्शन लिया जा रहा है, जिस तरह यूपी के मवाना में हुआ। अब ये मौका है मुसलमानों को मुत्तहिद होने का, एक होने का। मौलाना तौक़ीर रज़ा खान की गिरफ्तारी के बाद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सख्त रद्द अमल ज़रूर दिया, उनकी रिहाई का मुतालबा किया। जमात इस्लामी हिंद की तरफ से बयान सामने आता है, मौलाना महमूद मदनी की तरफ से भी एक बयान सामने आया जिसमें कहा गया आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से समझौता नहीं किया जा सकता है। मुसलमान ये जुमला बोलेंगे और इसको कम्युनल नारा नहीं बनाना चाहिए, लेकिन उनकी प्रेस रिलीज में मौलाना तौक़ीर रज़ा खान का नाम नहीं लिखा गया था। मौलाना सज्जाद नुमानी ने खुलकर आवाज़ उठाई और जब उन्होंने मौलाना तौक़ीर रज़ा खान के सपोर्ट में बोला, लिखा, तकरीर की, इंटरव्यू दिया तो गोदी मीडिया ने उनको ही आड़े हाथों ले लिया। कानपुर में मौलाना सज्जाद नोमानी का भड़काऊ बयान सामने आया। उन्होंने एक कार्यक्रम में कहा कि पूरी दुनिया में इस समय बेचैनी फैल रही है, भारत में भी कुछ ऐसा ही है, लोग बहुत दिन तक केवल तमाशबिन नहीं बने रह सकते। कि अब कानपुर में भी ऐसी ही तकरीर सामने आई है जिसमें एक मौलाना सत्ता को लेकर ठीक उससे पहले ही ऐसी बातें कर रहा है। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की सीनियर मेंबर मौलाना नोमानी के भड़काऊ भाषण से, और उन पर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया। उस पर मैंने एक वीडियो भी बनाई थी कि किस तरह मीडिया ने मौलाना सज्जाद नोमानी का मीडिया ट्रायल शुरू किया था, रजत शर्मा ने इसका आगाज़ किया था, मौलाना नोमानी के बयान को किस तरह काट छाट कर इन लोगों ने पेश किया था। उस वीडियो को ज़रूर एक मरतबा देख लीजिएगा। बहरहाल आइए अब मुद्दे पर आते हैं। मौलाना अरशद मदनी की तरफ से कुछ भी नहीं कहा गया है मौलाना तौक़ीर रज़ा खान को लेकर के। इसके अलावा भी जो देश में बड़ी बड़ी तंजीमें हैं, ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनकी तरफ से सन्नाटा है, खामोशी है। एक हफ्ता से ज़्यादा का वक्त हो चुका है मौलाना तौक़ीर रज़ा खान की गिरफ्तारी को, बरेली में लोगों के घरों को बुलडोज किए जाने को, या लगातार जो वहाँ पुलिस की तरफ से दबिश दी जा रही है। लेकिन पूरे देश में सिर्फ एक एहतजाज हुआ है, एक प्रोटेस्ट हुआ, और वो प्रोटेस्ट हुआ है महाराष्ट्र के मुंब्रा में। महाराष्ट्र के मुंब्रा में मुफ्ती अब्दुल बासित साहब ने, उनके लोगों ने एहतजाजी रैली निकाली, प्रोटेस्ट किया और साफ लफ्ज़ों में उन्होंने कहा कि मौलाना तौक़ीर रज़ा खान का कुछ भी कसूर नहीं है, उनकी गिरफ्तारी गलत है, फ़ौरन उनको रिलीज़ किया जाए, उनको रिहा किया जाए। और वहाँ के जितने लोकल एक्टिविस्ट थे, नेता थे, सभी ने मुफ्ती अब्दुल बासित कासमी साहब का साथ दिया, उनको सपोर्ट किया। एक अच्छी कोशिश थी, लेकिन जिस तरह हमारे बड़े लीडर्स को सामने आना था, जिस तरह उनको अपना एक मैसेज और पैगाम देना था, वो उन्होंने नहीं किया। बरेली असदुद्दीन ओवैसी साहब नहीं जा सके। ट्विटर पर ओवैसी साहब ने ज़रूर लिखा, लेकिन मौका था कि ओवैसी साहब बरेली जाते, लेकिन बरेली जाने की जगह वो बिहार जा चुके हैं। मौलाना महमूद मदनी भी वहाँ पर नहीं पहुँचे, दूसरे रहनुमा भी नहीं पहुँचे हैं। समाजवादी पार्टी के कुछ नेता पहुँचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पहुँचने से पहले ही उन्होंने ऐलान कर दिया कि ज़ियाउर रहमान बर्क वहाँ जाएंगे, इकरा हसन जाएगी, या उनके दूसरे लीडर्स जाएंगे, अखिलेश यादव जाएंगे, दूसरे रहनुमा जाएंगे। और उसका नतीजा ये हुआ कि पुलिस ने जाने से पहले ही उन सबको रोक लिया, उनको हाउस अरेस्ट कर लिया। इसी तरह इमरान मसूद ने जाने का ऐलान किया, उनको भी पुलिस ने हाउस अरेस्ट कर लिया। या अमरोहा के साबिक एमपी कुंवर दानिश अली ने जाने का ऐलान किया एक दिन पहले, तो पुलिस ने उनको भी हाउस अरेस्ट कर लिया। अगर वहां जाना आप चाहते हैं तो जा सकते हैं, ऐसा भी कोई मसला नहीं है कि आपको रास्ते में रोक लिया जाएगा, जाने नहीं दिया जाएगा। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आप पहले खामोशी के साथ जाइए, वहाँ के हालात को देखिए, लोगों से मुलाकात कीजिए, उसके बाद आकर के मीडिया में बयान दीजिए कि आपने क्या
क्या देखा, किस तरह का जायज़ा लिया, लेकिन इन लोगों को जाना होता नहीं है। इन लोगों को मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाना होता है, एक मैसेज देना होता है कि हम तो जाना चाह रहे थे लेकिन पुलिस ने ही जाने नहीं दिया। ऐसा नहीं है कि बरेली में अभी कोई तंजीम नहीं गई है या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को जाने की परमिशन नहीं है, बल्कि कुछ लोग गए हैं और उसमें सबसे बड़ा नाम है नदीम भाई का और कुछ दूसरे लोग हैं। APCR एक ऑर्गेनाइजेशन है जो लगातार मुसलमानों, अक़लियतों, दलितों, ईसाइयों पर होने वाले हमलों के खिलाफ आवाज़ उठाती है, वो तहक़ीक़ करती है, रिसर्च करती है और इंसानियत के लिए संस्था कंटिन्यू काम कर रही है। इस संस्था के सेक्रेटरी नदीम खान कुछ एक्टिविस्ट के साथ बरेली पहुंचते हैं, वो जायज़ा लेकर के आते हैं और उन्होंने बताया कि पुलिस एक तरफा कार्रवाई कर रही है, कोई सबूत नहीं है दंगा का, वायलेंस का, फसाद होने का। मौलाना तौक़ीर रज़ा खान ने तो भीड़ इकट्ठा करने की अपील भी नहीं की थी। उनकी अपील सिर्फ इतनी थी कि जुमा की नमाज के बाद वो मेमोरेंडम देने जाएंगे, सदर जमहूरिया को मैसेज पहुंचाना मकसद था। लेकिन मीडिया ने फर्जी खबर चलाई, पुलिस ने फर्जी बयान जारी किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस में झूठी बातें की गई, उन पर हथियार रखने का भी इल्ज़ाम लगा दिया गया और उसके बाद उनके चाहने वालों के, उनके नज़दीकी लोगों के घरों को बुलडोज़ किया जा रहा है। खुद मौलाना तौक़ीर रज़ा खान के जो करीबी लोग हैं जैसे डॉक्टर नफीस खान और दूसरे लोग, तो उन सब के बारे में वहाँ के बिजली डिपार्टमेंट ने कहा कि 1,25,00,000 का बिजली का बिल बकाया है, ये सब इन लोगों को अदा करना चाहिए। बहरहाल बरेली में ही सिर्फ मामला नहीं हुआ, बल्कि बरेली के अलावा देश के अलग अलग इलाकों से खबरें सामने आई है। महाराष्ट्र के भी अहमदनगर में जो कुछ हुआ बहुत बड़ा मामला था, जहां दुर्गा के पंडाल के सामने आई लव मोहम्मद लिख दिया गया, अपमान किया गया, मजाक उड़ाया गया और यूपी पुलिस की तो जिम्मेदारी ही लगी हुई है कि अगर कहीं भी अपने घर में कोई आई लव मोहम्मद लिख रहा है, कोई सोशल मीडिया पर लिख रहा है, उसको गिरफ्तार करो, उसको डिटेन करो। इसी तरह का मामला गुजरात में हुआ, कई इलाकों में इस तरह के मामले हो रहे हैं। अब मौका है, जिम्मेदारी है कि हमारे मुस्लिम लीडर्स एक हो जाएं, एक होकर ये सब या तो दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, एक मैसेज दें या मुश्तरका बयान जारी करें और एक प्लेटफॉर्म पर अब आना होगा। मौलाना अरशद मदनी को, मौलाना महमूद मदनी को, मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी को, जमात इस्लामी हिंद के अमीर सैयद सादतुल्लाह हुसैनी को, जमियत अहले हदीस के अमीर मौलाना असगर इमाम मेहदी सल्फी को, असदुद्दीन ओवैसी को, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के रहनुमा को, इंडियन नेशनल लीग के रहनुमा को, ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के रहनुमा को, ऑल इंडिया मिली काउंसिल की जो लीडरशिप है उसके जो रहनुमा है उन्हें, इस तरह के तमाम अहम रहनुमा को साथ आना होगा। ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस मुशावरत जो तमाम तंजीमों का विफाक मानती है उनको भी आना होगा और किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन को तो कोशिश करनी होगी, मुश्तरका कदम उठाना होगा, क्योंकि मामला यह है कब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बोलना जुर्म करार दिया जा रहा है, आई लव मोहम्मद कहने पर इनको एतराज़ है, चालान काटा जा रहा है। आप सड़कों पर निकल जाइए, वेस्ट यूपी जाइए, हरियाणा जाइए, हर गाड़ी पर आपको एक झंडा दिखेगा जिस पर लिखा रहता है जय बजरंग बली की या आई लव महादेव, आई लव कोई ना कोई, यानी अपने भगवानों की तस्वीरें लगाते हैं, अपना भगवा झंडा लगाते हैं, तब पुलिस को एतराज़ नहीं, तब प्रशासन को एतराज़ नहीं, तब उनका चालान काटा जाता है। लेकिन अगर कोई मुसलमान अपने घर पर मजहबी झंडा लगा रहा है ईद मिलादुन नबी का, तो उसको पाकिस्तान का झंडा बता देती है पुलिस, फौरन गिरफ्तार कर लेती है। और अब तो गिरफ्तारी के लिए पाकिस्तानी झंडा बताने की भी जरूरत नहीं है, बस यही कहकर गिरफ्तार कर लिया जाएगा कि जो झंडा है जिस पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा हुआ है ये विवादित झंडा है और तुम्हें गिरफ्तार किया जाएगा, इसकी परमिशन नहीं है। या कोई सोशल मीडिया पर पोस्ट करेगा, कोई कुछ और लिखेगा और उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा और ये कम्युनिटी को डराया जा रहा है, खौफ ज़दा किया जा रहा है। जब आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कैंपेन शुरू हुआ और सोशल मीडिया पर मुसलमानों ने आकर के कहना शुरू किया कि हम आई लव मोहम्मद बोलेंगे, अगर ये बोलना जुर्म है तो जुर्म सही, ये जुमला बोलने के लिए, लिखने के लिए सज़ा दी जाएगी तो वो सज़ा झेलने को हम तैयार हैं। तो यूपी की पुलिस ने, योगी आदित्यनाथ ने कह दिया तुम बोलो हम तुम्हें सज़ा देंगे, और अब सज़ा दी जा रही है। और जब सज़ा दी जा रही है और हमारे लीडर्स ने, हमारे कायदीन ने कहा था हर सज़ा मंजूर है, तब कम्युनिटी को तहफ़्फ़ुज़ देना, उनको बचाना, उनके हौसले को बुलंद करना भी ज़रूरी है। आखिर कितना बड़ा अलमिया है कि एक मुसलमान अपने घर पर, अपने दरवाजे पर आई लव मोहम्मद लगा रहा है और उसको हटाया जा रहा है, गाड़ी पर स्टिकर लगा रहा है और उसको विवादित बताया जा रहा है। सबसे ज़्यादा जो तकलीफ दे बात है वो यही कि आई लव मोहम्मद विवादित जुमला है, आई लव मोहम्मद नहीं बोलना होगा मुसलमानों को, ये इल्लीगल है, इस पर एक्शन होगा, ये बहुत बड़ा जुमला है और हमारे लीडर्स को आना चाहिए। अब तो ऐसा रह गया कि सिर्फ नमाज पर पाबंदी नहीं लगी है, रोज़ा रखने पर पाबंदी नहीं लगी है, वरना सब कुछ पर पाबंदी लगा दी गई है।
नमाज पढ़ने की आज़ादी है और उस पर भी कई जगह से आज़ादी ख़त्म हो चुकी है। हिंदू कॉलोनी है, वहाँ एक मुसलमान का घर है और वहाँ अगर आप नमाज अदा करेंगे तो हिंदू समाज के लोग आकर आपको घेर लेंगे और कहेंगे तुम अपने घर में पूजा क्यों कर रहे हो, नमाज अदा क्यों कर रहे हो, हमारी भावनाएं आहत हो रही है, हमारे जज्बात मजरूह हो रहे हैं, हम तुम्हें अपने घर के अंदर नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं देंगे, तुम यहाँ से निकल जाओ। और ये कोई ख्याली बातें नहीं है, बल्कि मेरठ का वाक़या है कि मेरठ में एक मुसलमान ने घर लिया और वो अपने घर के अंदर नमाज अदा कर रहा था। किसी को पता चल गया कि ये घर के अंदर नमाज अदा कर रहा है, उसको लोगों ने घेर लिया। इसी तरह मुरादाबाद से खबर सामने आई थी और तकरीबन 2 साल पुरानी ये खबर है कि मुरादाबाद में एक बंद पड़ा घर था। उस गांव में कहीं पर कोई मस्जिद नहीं है, मुसलमानों को मस्जिद बनाने की परमिशन भी वहां नहीं है। उसके बाद मुसलमानों ने उसी घर में नमाज अदा करना शुरू कर दिया, लोग वहां पर इकट्ठे होने लगे। अब जैसे ही बजरंग दल के लोगों को, मेजॉरिटी समाज के अफराद को पता चला कि मुसलमानों को हमने मस्जिद बनाने की इजाज़त नहीं दी है, तब ये एक मस्जिद में ये एक घर में आकर नमाज अदा करने लगे। उस घर को लोगों ने घेर लिया, वहां पर तोड़फोड़ की और प्रशासन ने भी कहा कि जब आपको यहाँ पर मस्जिद बनाने से रोका गया तो इसीलिए रोका गया कि आप इकट्ठे होकर नमाज अदा ना करें, सिर्फ अपने घर में छुपकर नमाज अदा करें। आप एक घर में इकट्ठे होकर नमाज अदा कर रहे हैं, इसका मतलब है कि ये आपकी मस्जिद हो चुकी है और ऐसा आप नहीं कर सकते। लगातार आप देख रहे हैं कि जब इनकी कोई धार्मिक यात्रा निकलती है तो फूलों की बरसात की जाती है, प्रशासन के अफराद आकर फूल बरसाते हैं और जब ईद और बकरीद का टाइम आता है तो कहा जाता है अगर किसी ने 1 इंच रोड पर भी या 1 इंच सरकारी ज़मीन पर भी नमाज अदा कर लिया तो उसे क्रिमिनल मुजरिम माना जाएगा, क्रिमिनल एक्ट के तहत उस पर कार्रवाई होगी, पासपोर्ट को जब्त कर लिया जाएगा। और मेरठ के प्रशासन का ही इसी मरतबा बयान सामने आया था। तो ये रवैया है और ये मामला बहुत आगे जा चुका है। इसलिए मैंने जो कहा कि अब आपको अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेने से भी रोक दिया गया है, उसको विवादित बना दिया गया है। फिलहाल आप कहीं नमाज पढ़ सकते हैं, रोज़ा रख सकते हैं, उम्रा और हज करने जा रहे हैं। पिछले दिनों उम्रा करके जो लोग लौटे थे उन पर भी हमला हुआ था। उधर जौनपुर से आज ये खबर सामने आई कि एक मुस्लिम महिला प्रेग्नेंट है और वो हॉस्पिटल जाती है और वो मुसलमान थी तो उसको एडमिट नहीं किया गया, उसको वापस भेज दिया गया। और ये जौनपुर का मामला है। बोल रही थी ये मुस्लिम को मैं नहीं देखूंगी। कौन था? लेडीज डॉक्टर थी। कब की घटना है ये? रात को 9 बजे, 9:30 साढ़े 9-10 बजे। क्या नाम है आपका? समा परवीन। आपके हस्बैंड का नाम? गांव कहाँ? पीरी भाई, थाना चंदौर। ये आपने इसकी शिकायत किसी अधिकारी से की है? आपकी डिलीवरी हुई? अभी नहीं। क्या कह के आपको हटा दिया वो गया? बोल रही है मुस्लिम को मैं नहीं देखूंगी। मैं खाट पे जाके लेटी तो भी नहीं देखी तो मुझे नर्स आके देखी। यहाँ तक बोली कि इसको ऑपरेशन थिएटर में भेजना है, इसकी डिलीवरी नहीं करवाऊंगी। एक और डॉक्टर के मामला सामने आया, उनकी वीडियो वायरल हो रही है। वो कह रहे हैं कि एक पेशेंट था, वो लाइन में लगा था, लेकिन जैसे उसने डॉक्टर का नाम पूछा और पता चला हमारी लाइन में जो डॉक्टर है वो मुसलमान डॉक्टर है, तो उसने अपनी लाइन को चेंज कर लिया। मैं अभी ओपीडी देख रहा था तो लाइन में 4-5 लोग खड़े हुए थे, तो पीछे से कोई आगे वाले पेशेंट से पूछ रहा था कि इन डॉक्टर साहब का क्या नाम है। मुझे आवाज़ आ रही थी थोड़ी थोड़ी, तो उनका बोला कि जुल्फ़िकार नाम है इनका। बोला अच्छा मुल्ला है? तो बोला हाँ मुल्ला है। तो पेशेंट लाइन तोड़ के दूसरे ओपीडी में चला गया दिखाने के लिए। 60-70 साल की उम्र थी उनकी। तो नफरत बहुत आगे जा चुकी है, फ़िरका परस्ती बहुत ज़्यादा आगे जा चुकी है। और जब से आरएसएस ने 100 साला जश्न मनाने का ऐलान किया है तब से बिल्कुल अपने चरम पर हैं। खुलेआम मुसलमानों को धमकियां भी दी जा रही है। जामिया मिल्लिया इस्लामिया जैसी यूनिवर्सिटी के सामने अब आरएसएस की परेड निकल रही है। आरएसएस क्या है, उसकी हिस्ट्री क्या है, तारीख़ क्या है और आरएसएस ने कैसे 100 सालों में अपने आप को मजबूत किया, अपने एजेंडा को नाफिज किया, और क्यों हमेशा कहा जाता है आरएसएस मुसलमानों के लिए ख़तरा है, मुसलमानों के खिलाफ आरएसएस की पूरी आइडियोलॉजी है। इसे आपको भी समझना होगा, जानना होगा। मारूफ दानिश्वर हैं जनाब प्रोफेसर अपूर्वानंद साहब, लगातार इस तरह के मुद्दों पर वो आवाज़ उठाते हैं, बोलते हैं, लिखते हैं। द हिंदू में, इंडियन एक्सप्रेस में उनका कॉलम भी आता है, मिलत टाइम्स पर भी लगातार हम उनको लाते रहे हैं। इस मरतबा भी आरएसएस की तारीख़, उसके मिशन, एजेंडा पर मैंने एक तफसीली इंटरव्यू किया है जिसका ड्यूरेशन 1 घंटा 15 मिनट से ज़्यादा का है, लेकिन बहुत अहम इंटरव्यू है और इस इंटरव्यू को आपको ज़रूर सुनना चाहिए। मिलत टाइम्स के यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। और आखिर में आपसे गुजारिश है कि मिलत टाइम्स की मेंबरशिप ले लीजिए। मिलत टाइम्स का अंग्रेज़ी न्यूज़ पोर्टल बंद हुआ है जिसको शुरू
शुरू करना दोबारा ज़रूरी है, और उसको दोबारा शुरू करने के लिए ज़रूरी है कि आपका हमें सपोर्ट मिले, आप हमारे मेंबर बन जाएं। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मौजूद है, इसी तरह स्क्रीन पर एक QR कोड दिख रहा है, जैसे आप इसे स्कैन करेंगे तो मिल्लत टाइम्स की वेबसाइट खुलेगी जहां पर हमारा प्लान मौजूद है 99, 299, 499, यानी सिर्फ 99 रुपये का प्लान भी आप ले सकते हैं, या 299 का भी, 499 का भी। महीने में एक मरतबा आपके अकाउंट से पैसा कटेगा। तो प्लीज़ आप आगे के प्रोसेस को फॉलो कीजिए। किसी भी तरह की कोई दुश्वारी आपको पेश आती है, डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर मौजूद है, उस नंबर पर कॉल कीजिए, हमारी टीम आपको समझाएगी, मदद करेगी। लेकिन मेंबर ज़रूर बनिए, अपने दोस्तों को, जानने वालों को भी मेंबर बनाइए, ताकि मिल्लत टाइम्स का अंग्रेज़ी न्यूज़ पोर्टल शुरू हो जाए, जो बेहद ज़रूरी है। और मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।